So, a very good morning to all of you. Hope you all are good. You all are safe at home, Hannah. And you all are studying. Okay. So, we are going to continue the chapter of the science which we were doing the last day. That is the microorganisms, friend and foe. Is it so? Microorganism, friend and enemy. Foe means enemy. So we were discussing about the different 5 kingdoms in which the microorganisms are being classified, and the 5 kingdoms are what? We have read about it, Hannah. So they were what? Bacteria, fungi, algae, Hannah. Then your bacteria, fungi, algae, then protozoa and viruses. Okay, so we have discussed the general characteristics of all these organisms. Is it so? We have discussed the general characteristics of all these organisms. We have discussed that where these organisms live. We have discussed that whether they are autotrophic, they are saprotroph, they are heterotroph. They are about the mode of nutrition mainly. Their mode of nutrition. Then after that we have discussed the some human diseases. Some human diseases which can be caused by these organisms. Is it so? So these things we have discussed in the earlier classes. Okay. Chalo. Okay. So next, a very small question arises that it's okay that we have read about the classification, the features, of the microorganisms, but we should know that where the microorganisms live. Okay, because I think that you all have read in your previous classes that what is the meaning of habitat. What is the meaning of habitat? So what is habitat? The natural surroundings where an organism can survive. Okay, वेयर इट कैन सर्वाइव है ना, जहाँ पे वो सही से रह सकता है, कंफर्टेबली रह सकता है ना, जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल नहीं है, वो हम लोग बोलते हैं दैट इज द हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ओके, सो वी शुड नो about the habitat of the microorganisms. Is it so? So like that organisms, we should know the habitat of the microorganisms also. Means where do the microorganisms live? Where do the microorganisms live? Okay, so as you all know that we know that microorganisms are found almost everywhere. Microorganisms are found everywhere. Is it so? But फिर भी spatially there are some certain places where they are found, like they are found in air, soil and water bodies like pond, lake, wells and seas. Okay, air, water and soil. Okay, in these 3 places they are found. Okay, microorganisms can live and survive in all kind of environment like hot spring, cold water, saline water, desert soil, marshy land. So means what? That they can live and survive on almost all kind of environments. They can live, they can survive on almost all kinds of environments. Is it so? Acha, ठीक. Next, they occur in dead and decomposed organic matter. Microorganisms are present inside the human body and other animals also. Yes, this is very important that microorganisms not only they are present around us, they are present inside us also. Inside us means not only humans, inside the living organisms. Inside the animals, inside the humans. I would like to tell you name of one microorganism actually, which is present inside our body and it helps in the digestion of food. And the name of the microorganism is E. coli. Okay, capital E dot coli, coli. Capital E dot coli, E. coli. That is a bacteria which is present in our intestine and it helps in the digestion of our food. है ना? तो बैक्टीरिया मतलब microorganisms है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है that they are around us, है ना, they are inside the living animals also. Okay, and as we know that अभी जो E. coli के बारे में हम लोगों ने कहा, तो इसका क्या है, ये एक हेल्पफुलनेस है ना इसका, इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस, है ना, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है.
ठीक उसी तरीके से अगर बाहर से कोई भी फॉरेन मटेरियल्स, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो या फिर कोई वायरस हो, है ना, अगर वो हम लोग के बॉडी में एंटर करता है तो उसकी वजह से हम लोग को डिजीजेज भी हो सकता है। तो सिमिलरली एक्चुअली दे कैन बी हेल्पफुल फॉर अस ऑल्सो एंड दे कैन बी हार्मफुल फॉर अस, है ना, इट डिपेंड्स, है ना। जैसे लोग भी बहुत तरीके के होते हैं ना, तो तुम लोगों के फ्रेंड्स में भी हो सकता है तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स हैं वो सब तुम्हारे जैसे ही है ना, जैसे होता है ना कोई स्टूडियस बच्चे के फ्रेंड्स भी स्टूडियस टाइप है ना, हमेशा पढ़ाई लिखाई एंड ऑल लेके बात करते थे। कुछ कुछ हो जाता है तुम लोग का बच्चा अच्छा है लेकिन उसका जो फ्रेंड सर्कल है सही नहीं है, मतलब बच्चा है थोड़ा सा स्टूडियस टाइप है ना, उसका फ्रेंड सर्कल हमेशा मार पीट, है ना, वो सब उल्टा पुल्टा हरकत जो क्लास में है ना, टीचर को परेशान करना, ये सब कर रहा है, उसको सही माहौल फिर नहीं मिलता है ना, तो वो फ्रेंड उस बच्चे के लिए जो है हार्मफुल है। अच्छे खासे बच्चे को वो लोग जो है बिगाड़ देंगे, है ना। तो ऐसी बात है, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, लेकिन इट वॉज जस्ट एग्जाम्पल, है ना। तो लोग सभी अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है ना, कोई दिक्कत है बातें सुनेंगे, है ना। चलो ठीक है, तो चलो फिर अब हम लोग देख लेते हैं फिर, है ना। अभी फर्दर जो हम लोग देखेंगे वो क्या है कि हम लोग अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूजफुलनेस एंड द हार्मफुलनेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डिटेल्स, है ना। अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द हार्मफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डिटेल्स, है ना। तो चलो फिर कुछ पॉइंट्स पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना, यूजफुलनेस का कुछ पॉइंट्स हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं तो बेहतर होगा। तो तुम लोग भी चाहो तो लिख सकते हो, है ना, जहाँ पे भी तुम लोग लिख रहे हो तो वहाँ पे तुम लोग अपना हेडिंग वगैरह डाल सकते हो, और तुम लोग भी लिख सकते हो व्हाट, छोटा सा हेडिंग दे दो, दैट यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, या फिर तुम इसको चेंज करके लिख सकते हो फ्रेंडली नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक दैट। इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिंपली राइट यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अंडरस्टूड। चलो ठीक है, ओके, राइट द फर्स्ट पॉइंट। Microorganisms are utilized in the making of, not baking, okay, it's making, in the making of MAKING curd, 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 comma bread and cake, curd, comma bread and cake, okay. Second point, microorganisms are used in the production of, microorganisms are used in the production of alcohol, ALCOHOL, comma wine, 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 and vinegar, VINEGAR, विनेगर, ठीक है। विनेगर के ब्रैकेट में तुम लोग लिख लो, विनेगर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो तुम लोग लिख लो, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोग को, है ना, नेम चेंज करके तो दिक्कत हो सकता है ना। तो विनेगर का विनेगर लिखिए, विनेगर के बाद ब्रैकेट ओपन करो, लिखो एसेटिक एसिड, ACETIC, एसेटिक एसिड, ACID, एसिड, ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो विनेगर का दूसरा नाम एसिडिक एसिड है, या फिर बोल सकते हो एसिडिक एसिड का दूसरा नाम विनेगर है ना। इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछेगा, जस्ट यूजुअली बोल सकता है कि कॉमन नेम ऑफ एसिडिक एसिड इज, है ना, बिकॉज एसिडिक एसिड का जो कॉमन नेम है वो है विनेगर, है ना, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जनरली कुकिंग वगैरह में, हम लोग विनेगर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तुम लोग को भी पता होगा, नाम भी सुने होगा तुम लोग, स्पेशली इन ऑल द चाइनीज डिशेज, है ना। या थर्ड पॉइंट लिखो, microorganisms are used in the preparation of, microorganisms are used in the preparation of, microorganisms are used in the preparation of medicines, comma drugs, 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 which are known as antibiotics। इस मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं ना, जिसको हम लोग
दुकान में भी लेने जाते हैं, या फिर हम लोग को फीवर वगैरह हुआ रहता है तो बोलता है ना वो डॉक्टर, और हम लोग को प्रेस्क्राइब करता है, ही प्रेस्क्राइब्स एज द एंटीबायोटिक्स, है ना। तो ये एंटीबायोटिक्स है ना। तो ये हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, microorganisms are used in agriculture to increase the fertility, to increase the fertility of the soil, to increase the fertility of soil by fixing atmospheric nitrogen gas, by fixing FIXING, by fixing atmospheric nitrogen gas, atmospheric nitrogen gas to form, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म, गैस पर फुल स्टॉप नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है ना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स, टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन अप द एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स clean up the environment, 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 by decomposing the organic matter, by decomposing the organic matter of dead plants, comma, dead animals, dead plants, comma, dead animals, and animal wastes into harmless, into harmless and useful simple substances, into harmless and useful simple substances, full stop। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया, सारा नहीं, ऑब्वियसली नॉट, सारा पॉइंट्स नहीं है ये यूजफुलनेस का, है ना। तो इसमें से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यूजफुलनेस में से हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, है ना। सो अभी हम लोग इन सारे चीज़ों को लेके हम लोग अब डिटेल्स थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं, है ना। इन पांचों पॉइंट्स को लेके हम लोग डिटेल्स डिस्कशन जो है वो डिटेल पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूजफुलनेस के बाद फिर नेक्स्ट होगा हम लोग का हार्मफुलनेस, ठीक है ना, कि क्या क्या हार्मफुलनेस है उसका, फिर उसको लेके फिर हम लोग फर्दर बात करेंगे। उसके बाद भी बहुत कुछ है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़, व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, हाउ कैन बी प्रिवेंट, है ना, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, है ना। तो ये सारा चीज़, अभी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि हमारे वर्ल्ड में जो है वो फैल चुका है ना, इट हैज़ बिकम अ पैंडेमिक, COVID-19, so that's what sort of disease that is, है ना। बस यही सब है कुछ डिस्कशंस करने को। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट पॉइंट है ना, तो जो तुम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखे थे यूजफुलनेस में वो था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर जनरली यूटिलाइज्ड इन मेकिंग ऑफ कर्ड, मेकिंग ऑफ ब्रेड, मेकिंग ऑफ केक, है ना। चलो, तो फर्स्ट क्लास में मैंने तुम लोग को ये बताया था दैट मेकिंग ऑफ कर्ड में एक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं हम लोग, जो कर्ड बनाने में, वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, दैट इज़ द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस। ये मैंने बता दिया था तुमको, है ना। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि जनरली वही बैक्टीरिया जो है वो कर्ड में होता है ना, कर्ड में वही बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, और फर्दर वही जो है वो ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है। और वो हम लोग देखते हैं ना, जैसे जब हम लोग को दही बनाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ल्यूक वॉर्म मिल्क लेते हैं, एंड इन दैट हम लोग क्या करते हैं, इन दैट हम लोग थोड़ा सा जो कर्ड को डाल देते हैं, और फिर जब ओवरनाइट हम लोग छोड़ देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मीन्स आफ्टर 6 to 7 आवर्स जो है वो पूरा का पूरा जो है, जो इतना सा कर्ड था वो कर्ड पूरा का पूरा जो है वो बोल जो है वो कर्ड से फुल हो गया ना, पूरा बोल ही कर्ड बन गया जो मिल्क था। तो ये होता कैसे, तो ये जनरली जो हम लोग का लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है दैट इज़ इन द कर्ड, है ना, इन कर्ड द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। तो शायद आई डोंट नो whether I have said you or not, you people have read or not, that the favorable conditions for the growth of any sort of microorganism is the time of rainy season, is the time of rainy season. The best
टाइम फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में तुम लोग भी जानते हो कि इट्स नीदर टू हॉट, इट्स नॉट टू कोल्ड, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है समर जैसा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है कोल्ड जैसा, है ना। तो एक एवरेज, एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है, एंड दैट टेम्परेचर इज सूटेबल, बेस्ट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, है ना। और जब भी हम लोग मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो जो मिल्क का टेम्परेचर रहता है वो भी कुछ इस तरीके का ही होता है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एकदम हल्का गर्म। तो वो जो कंडीशन होता है ना, वो बेस्ट कंडीशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के ग्रो करने को, है ना। तो उस कंडीशन में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो अपने आप को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोडक्शन होगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा 1000 टाइम्स, एंड वो जो पूरा जो होल है दैट विल बी फुल ऑफ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, मतलब कर्ड, है ना। इस तरीके से जनरली जो कर्ड है वो बनता है। तुमको पता है कि दैट बैक्टीरिया इज वेरी गुड फॉर अस, है ना, इट्स वेरी हेल्दी फॉर अस, है ना। तो ये बात है और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, पूरा प्रोसेस अगर तुम लोगों को समझाए तो चलो फिर वो भी समझ ही लेते हैं। जब समझना है तो सब कुछ, यू शुड नो एवरीथिंग इन डिटेल्स, है ना। एटलीस्ट उतना डिटेल्स जितना हम लोग अभी एब्जॉर्ब कर पाए, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं, उतना डिटेल्स ज़रूर पढ़ना चाहिए हम लोग को जितना हम लोग एब्जॉर्ब कर पाए, है ना। वेदर इट्स इन सिलेबस, मतलब एनसीईआरटी बुक में है नहीं है, दैट्स नॉट अ बिग डील, है ना। बिकॉज हाँ, मार्क्स लेने के लिए पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी सिर्फ मार्क्स से तो सब कुछ नहीं होगा, थोड़ा नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। पढ़ाई लिखाई का मेन जो मकसद होता है ना, दैट इज़ टू गेन नॉलेज। तो नॉलेज रहेगा तो ऑब्वियसली काम करेगा, है ना हम लोग, ऑब्वियसली। ओके, ठीक है। सो the process is given here that when a little of pre-made curd is added to the warm milk, then the lactobacillus bacteria which is present in the curd multiply in the milk and convert it into curd. The same thing which I said you, है ना। Okay. दिस हैपन्स एज फॉलोज। अभी हाउ दिस हैपन्स, है ना, ये तो छोटा सा बात है जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये लैक्टोबैसिलस उस कंडीशन में अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा और फर्दर जो है वो पूरा मिल्क कर्ड में बन जाएगा। अभी होता कैसे, है ना, देखो। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। तो ये हम लोग को पता है दैट मिल्क कंटेन्स अ शुगर कॉल्ड लैक्टोज। मिल्क में एक शुगर होता है पहले से ही, उसका नाम होता है लैक्टोज, है ना। इसीलिए इट इज़ जनरली प्रेफर्ड, ऐसा बोला जाता है कि छोड़ो क्या बोला था, नहीं बताएंगे फिर बहुत आगे चला जाएगा, पता है ना, फिर कभी और बताएंगे, है ना। ओके, द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया convert the lactose sugar into lactic acid. Okay, the lactobacillus bacteria will convert the lactose which is present in the milk, it will convert the lactose into lactic acid. Okay, okay, this lactic acid will convert the milk into curd. ये lactic acid जो है वो milk को further curd में convert कर देता। We can now say that the microorganism which is utilized in making the curd is the bacteria. The name of the bacteria is lactobacillus. An important ingredient of idli and bhatura is curd. Curd is added in making idli and bhaturas to make them soft and spongy. Bacteria is also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. Okay, तो इस तरीके से काम होता है। तो क्या होता है, जो जनरली शुगर बैक्टीरिया क्या करता है, उस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज करता है, फर्दर वो लैक्टिक एसिड मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इज द मेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड का भी मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेड का मेकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक प्रोसेस के बारे में जानते हैं जिस प्रोसेस का नाम होता है फर्मेंटेशन, है ना। तुम लोग को पता है कि जनरली जो है ब्रेड वगैरह बनाने के लिए हम लोग जिसको यूज़ करते हैं वो ईस्ट, YEAST, ईस्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना। तो ईस्ट को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं ये सब बनाने के लिए। तो देखो ये जो मेकिंग ऑफ ब्रेड है इसमें हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, जो एक हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बोले फर्मेंटेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। कुछ प्रोसेस हैं जो कि रियली बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना हम लोग के लिए ज़रूरी भी होना था। ज़रूरी इसलिए होता है ये सब प्रोसेस कि एक्चुअली दीज क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, है ना। ऑनेस्टली आई विल से यू दैट हाउ द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड नहीं पूछता है, हार्डली पूछेगा तो ये पूछ लेता है कि मतलब
इन शॉर्ट पूछेगा 1 मार्क्स में, है ना, जिसमें तुम बस इतना लिख दोगे तो काफ़ी हो जाएगा कि मीन्स लैक्टोबैसिलस इज प्रेजेंट इनसाइड द कर्ड विच मल्टीप्लाइज एंड देन कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, खत्म कहानी, है ना। ज़्यादा लिखने का नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए, है ना। देखो फिर कैसे होता है, देखो so it's written the yeast is used in the baking industry for making bread. When yeast is mixed in the dough, the yeast reproduces and gives out the carbon dioxide gas during respiration. Yes, we know, है ना। ब्रेड वगैरह बनाने में जो है वो ईस्ट का यूज़ इसलिए होता है कि जब जो डो तैयार होता है, डो का मतलब तुम लोग को पता होगा व्हाट इज डो, है ना। जब भी आटा या मैदा जो भी होता है, फ्लोर वगैरह, उसको जो हम लोग सान के मतलब वो जो हो जाता है ना, जब वो रेडी है मतलब उससे रोटी वगैरह बना सकते हो बेल के, तो वाला जो होता है स्टेट, उसको डो बोलते हैं। सबको पता होगा जनरली, है ना। आई थिंक दैट सबको पता होगा, इसमें मतलब कुछ भी बताने वाली बात नहीं है ना। यस, तो यही है। तो जब डो में हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट को मिक्स करते हैं। जब ईस्ट को हम लोग मिक्स करते हैं तो ईस्ट जो है रिप्रोड्यूस करता है, जनरली अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो जब भी उसका रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेशन, है ना, तो जब उसका रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होता है। ये एक फैक्ट है, क्योंकि तुम लोग को पता है कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है ना। ये आई गेस कि तुम लोग को पता होगा। रेस्पिरेशन मीन्स जो हम लोग फूड को ले रहे हैं, एक रेस्पिरेशन तो होता है इनहेल एंड एक्सेल करने को भी रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक रेस्पिरेशन होता है कि जो फूड हम लोग ले रहे हैं, है ना, द फूड वी आर टेकिंग इन, तो वो फूड से हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना। तो जो एनर्जी मिलने वाला प्रोसेस है फूड से, तो यही है रेस्पिरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। तो जो भी हम लोग खा रहे हैं फूड पार्टिकल्स, वो फर्दर जो है वो सिंपल छोटे छोटे पीसेस में जो है वो ब्रेक हो जाता है। वो फर्दर ब्रेक होके, है ना, ब्रेक होके क्या होता है, वो एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करता है हम लोग की बॉडी में। वाटर बॉडी में रह जाता है, एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं हम लोग, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं हम लोग, है ना। तो खाना खाने से ये 3 चीज़ बनता है हम लोग की बॉडी, ठीक है। खाना जो हम लोग खाते हैं, तो जो हम लोग खा रहे हैं खाना, है ना, डाइजेस्ट हो गया है खाना। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो है वो जनरली 3 चीज़ हम लोग का बनता है रेस्पिरेशन। एक तो एनर्जी बनता है, जिसको मेरा सेल्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ले लेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास सारा एनर्जी हम लोग की बॉडी का स्टोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, आई थिंक कि तुम लोग इसका नाम सुने हो, नहीं सुने हो तो घबराने का कुछ नहीं है, बता देंगे, है ना। पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी पूछ लेना, याद नहीं रहता, बता दो, ठीक है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उसमें एनर्जी चला गया। वाटर जो रिलीज हुआ रेस्पिरेशन से, तो वो वाटर हम लोग का बॉडी ले लिया, है ना। और जो थर्ड थिंग था कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो है वो एक्सेल आउट कर देंगे हम लोग, खत्म है कहानी, ठीक है। तो सिमिलरली जब यीस्ट जो है, जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इसका भी रेस्पिरेशन जब होता है, इन लोगों का भी, तो ये लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं, है ना। तो सिमिलरली जब कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को रिलीज करेगा, तो जब इसके अंदर ईस्ट डाले थे हम लोग डो के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो क्या होगा, तो डो के अंदर रिलीज होगा, तो जो बबल्स निकलेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, तो बबल्स निकलता है। वो बबल्स क्या होगा, वो बबल्स की वजह से ये जो डो है वो फूल जाएगा, है ना, इसमें पूरा एयर आ जाएगा, है ना। इसीलिए देखना स्पॉन्जी स्पॉन्जी रहता है ब्रेड्स वगैरह, खास करके स्वीट ब्रेड जो होता है वो सब एकदम स्पॉन्जी होता है। तो सब कमाल है, एक्चुअली ईस्ट का ही कमाल है ये सब, ठीक है ना। तो वो जो है वो ब्रेड जो है बड़ा हो जाएगा, है ना, ब्रेड जो है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा दिखने लगेगा, है ना। और ब्रेड के अंदर बहुत सारा होल्स दिखने लगेगा, है ना। एंड इसी की वजह से ब्रेड जो है वो लाइट होता है, सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है ना। ईस्ट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग केक्स एंड पेस्ट्री, है ना। ईस्ट को हम लोग जनरली केक और पेस्ट्री बनाने के भी काम में लगाते हैं। ये बात यहाँ पे तुमको बताया जा रहा है, समझ में आया। तो ये 2 पॉइंट है जो कि हम लोग जनरली डिस्कस करना चाहते थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट था, जिसमें हम लोगों ने ये लिखा था कि अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, ये सब बनाने का मतलब ये किस तरीके से होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है ना। उसके बाद है कि मेडिसिनल यूज़, वैक्सीन वगैरह, है ना, फर्दर बहुत कुछ है एक्चुअली। मिनिमम वी विल रिक्वायर मिनिमम 3 क्लासेस टू कंप्लीट दिस चैप्टर। उसके पहले पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं है, आराम से चल रहा है ना। तो चलने देते हैं इसको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड इतना तक पढ़ लेना तुम लोग अच्छे से थॉरली, एंड उसके बाद फिर हम लोग विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे पॉजिटिव।